ایک صوفی کے پاس ایک نوجوان مرید گیا اور کہا مرشد سکون چاہیے۔ فقیر نے کہا نہیں ملے گا، جو تمہیں چاہیے وہ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو تم چاہو، جو بھی تم چاہ سکتے ہو، اس کائنات کی جو عظیم سے عظیم شے ہے جس کو چاہا جا سکتا ہے وہ بطور زندگی تمہیں حاصل ہے، اور جو حاصل ہے اس کو پانے جاؤ گے تو ہمیشہ اس سے دور ہی جاؤ گے۔ کسی تک جانا ہو تو چل کر جایا جا سکتا ہے، خود تک جانے کے لیے مگر چلو گے تو خود سے دور ہی پہنچو گے۔ نوجوان مرید نے فقیر سے سنا تو کہا کہ ایسی مجھ میں کیا بات آپ کو نظر آ گئی کہ مجھے سکون کبھی نہیں ملے گا؟ فقیر نے کہا کہ جب تک تو چاہے گا کہ سکون چاہیے تب تک سکون نہیں ملے گا۔ اس خواہش کو ترک کر دو تو سکون تمہیں حاصل ہے ہی۔ بے سکونی خواہش سے جڑی ہے اور تم اسی خواہش سے بے سکونی کا علاج ڈھونڈ رہے ہو جس کی وجہ سے بے سکونی پیدا ہوئی ہے۔ فقیر نے اس نوجوان مرید کو کہا ہم نے بھی بہت عرصے تک چاہ کی ہے سکون کی، اور آخر میں یہی جانا ہے کہ سب سے بڑی بے سکونی سکون کی چاہت میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک اور فقیر کا قصہ ہے، سننے والا ہے بلکہ سمجھنے والا ہے۔ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور سب چھوڑ آیا ہوں۔ فقیر نے اسے جواب میں کہا مہربانی کر اسے بھی چھوڑا۔ وہ شخص بولا لیکن میں نے سبھی کچھ ہی چھوڑ دیا ہے۔ فقیر کہتا ہے اسے بھی چھوڑا، اتنا بھی بچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فقیر کہنا چاہتا ہے کہ جو چھوڑ کر آیا ہے وہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ یاد رکھو کچھ ہونا چاہتے ہو تو کچھ بھی نہ رہو۔ جیسے ہی تم کچھ بھی نہ بچو گے تو تم سب ہو جاؤ گے۔ سمجھو خواہش ہزار روپوں میں ہزار بہروپوں میں حملہ کرتی ہے۔ خواہش انا کے سروائیول کا ٹول ہے۔ اگر تم بظاہر خواہشوں کو، صاف پکڑ میں آنے والی خواہشوں کو دبانا شروع کر دو گے تو خواہش مٹتی نہیں ہے، سٹلر ہو جاتی ہے، لطیف ہو جاتی ہے، ایسے روپ بھرتی جاتی ہے کہ جن کو تم پکڑ نہ سکو۔ کچھ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جسم نہیں رہو گے۔ کچھ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا۔ کچھ نہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم نوکری نہیں کرو گے۔ کچھ نہ ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ تم دکان پر نہیں بیٹھو گے۔ کچھ نہ ہونے کا یہ بھی معنی نہیں کہ تم فیکٹری نہ جاؤ گے۔ کچھ نہ ہونے کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ جو بھی ہو اس پر راضی ہو جاؤ، حالات پر راضی ہو جاؤ، لوگ جیسے ہیں ان کے ویسا ہونے پر راضی ہو جاؤ، ملک جیسا ہے ملک کے ویسے ہونے پر راضی ہو جاؤ، یہ دنیا جیسی ہے اس دنیا کے ویسے ہونے پر راضی ہو جاؤ۔ یہ ہے سرنڈر، اور یہ ہے سرنڈر کا حقیقی مطلب۔ سرنڈر وہ حالت ہے کہ جس میں تم دل میں کچھ بھی بدلنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ تم تجربہ کر کے دیکھ لو، فرض کرو تم بے سکون ہو، بے چین ہو، اس بے سکونی کو، اس بے چینی کو مکمل طور پر قبول کر لو، اس سے بھاگو مت، اس سے لڑو مت۔ تم دیکھو گے کہ اسی بے سکونی سے سکون کے جھرنے بہہ اٹھیں گے۔ یہ دنیا بہت انوکھی ہے، نیچر کے ڈھنگ بڑے الٹ پلٹ ہیں۔ پتھروں سے جھرنے بہہ پڑتے ہیں، کانٹوں کے بیچوں بیچ پھول کھل جاتے ہیں۔ تم کر کے دیکھو سرنڈر، بے چینی سے چین پھوٹے گا، بے آرامی سے آرام بہے گا۔ سرنڈر کا مطلب ہے میری کوئی خواہش نہیں، میں نیچر کی بہہ رہی زندگی کے بہاؤ کا ساتھی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں بدلنا۔ بے چین ہوں تو بے چین، بندھن میں ہوں تو بندھن، دکھی ہوں تو دکھی۔ سرنڈر ہے کامل قبولیت۔
मुकम्मल एक्सेप्टेंस। जो भी है वो ठीक है, और जब तुम ये जान लेते हो कि जो है वो ठीक है तो चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को बदलने की ख्वाहिश मर जाती है, और जैसे ही ख्वाहिश मरती है तो तुम वो हो जाते हो जो होने के लिए तुम बने हो। अब जिसे तुम देखोगे वो तुम होगे। तुम क्यों खुद को नहीं देख पाते, क्यों खुद को नहीं जान पाते? क्योंकि तुम कभी भी तो ख्वाहिश के नकाबू जज्बात की लहरों से आज़ाद नहीं होते। हर बार तुम अपनी एक तस्वीर देखते हो जो तुम नहीं होते। तुम गुस्से में भरे बैठे हो। अब पूछो खुद से कौन हो तुम? तुम खुद को एक गुस्सीली शय कहोगे। तुम दुख में डूबे हो। अब पूछो खुद से कौन हो तुम? जवाब मिलेगा दुखी आत्मा। हर वक्त तुम किसी जज्बे की लहर में डोल रहे होते हो, और हर जज्बा अपनी बुनियाद में ख्वाहिश है। काश ऐसा ना होता, काश ऐसा हो जाए। ये वो जमीन है जिसमें सारे जज्बे पैदा होते हैं। सरेंडर ये है कि जो मैं हूं वो हूं, उससे एक भी सेंटीमीटर इधर या उधर मैं नहीं हूं, न हो सकता हूं। जब तुम मुकम्मल सरेंडर करते हो, जब सब कुछ जैसा है वैसा ही कबूल करते हो, तो उस वक्त जो तुम्हारी स्टेट होती है वो रियल तुम होते हो, और ये बड़ी एम्पावर्ड स्टेट है, बहुत ही बाइख्तियार हालत। सूफी और आम आदमी की जिंदगी का फर्क कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। दोनों एक ही तरह की सेटिंग में होते हैं, एक ही दोनों की अक्ली और जिस्म के तकाजे होते हैं। बस सूफी ग्रेसफुल सरेंडर का आर्ट सीखा होता है। वो कायनात में जिंदगी के बहाव के साथ बहता बेमुशक्कत जीता जाता है, और आम आदमी पागलों की तरह जिंदगी के बहाव के मुखालिफ सिमत बहने की कोशिश करता रहता है, और यही उसका सारा दुख है। एक फकीर मिजाज आदमी ट्रेन में बैठा। उसके साथ सामान के 2 बैग थे। जब वो जाकर अपने डब्बे में अपनी सीट पर बैठ गया तो उसने अपने बैग उठाकर अपने सर पर रख लिए। लोगों ने कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? सामान ऊपर रैक में रख छोड़ें, क्यों खामखा तकलीफ उठा रहे हैं? सादा लोहा आदमी ने जवाब दिया, दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने किराया तो सिर्फ अपना दिया है और गाड़ी पर अपने साथ सामान भी रख छोड़ूं। लोगों ने उसे वही कहा जो कोई भी कहता कि तुम सर पर रखो या बोझ गाड़ी पर, दोनों ही सूरतों में वजन गाड़ी पर ही पड़ता है। खैर, काफी समझाने बुझाने के बाद उस सादा मिजाज आदमी ने सामान नीचे रख दिया और कहा कि मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। मैं तो ये समझ रहा था कि यहाँ सब के सब जिंदगी के गहरे राजों से जाहिल होंगे, मगर यहाँ तो सारे ही लोग जिंदगी के गुरों के आशना हैं। सोचो कितने ऐसे तुम्हारे दुख हैं जिन्हें तुम ना भी ढोते तो भी नेचर उनको ढो ही लेती। सोचो अपने दुखों के बारे में कि जिन पर तुम माजी में कितनी ही रातें कुटते रहे, वो नुकसान जिन्होंने तुम्हें कितने ही दिन बेकल किए रखा, वो लोगों का बिछड़ना जिसने तुम्हें नफ्सियाती मरीज बनाए रखा, वो किसी का धोखा दे जाना जिसने तुम्हें शराब पीने पर मजबूर रखा, वो सारे दुख अब कहाँ हैं? वो कुछ भी तो नहीं रहे, लेकिन तुम आज भी कुछ न कुछ लेकर बैठे होगे। कितने तुम्हारे बोझ हैं जो जिंदगी उठा सकती थी, तुम्हें उन्हें उठाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। कितने दुख हैं जो नेचर संभाल सकती थी, तुम्हें उन पर कुढ़ने की कोई भी तो जरूरत ना थी। लोगों ने उस सादा लोह फकीर की बातें सुनी तो कहा, हुजूर हम भी बस इसी गाड़ी के डब्बे में ही जिंदगी के गहरे राजों के ज्ञानी हैं।
बाहर हमें भी ये रूल याद नहीं रहते। जिंदगी के बहाव के साथ बहते फकीर और तुम्हारी जिंदगी के तजर्बात आमने सामने रख कर कभी देख लेना। उसकी जिंदगी ज्यादा तजर्बात से सजी होगी। उसकी जिंदगी की कठिनाइयां भी तुम्हारी जिंदगी की कठिनाइयों से बड़ी होंगी। उसके सफर भी बड़े होंगे, उसके चैलेंजेस भी तुमसे ज्यादा होंगे, मगर वो कोई दुख नहीं भोगता, कोई स्ट्रेस नहीं सहता, किसी एंजाइटी की आग में नहीं जलता। क्यों? क्या है उसके पास ऐसा? उसके पास है एक आर्ट ऑफ सरेंडर। हिमाकत अपने अहमक ना होने को साबित करने के जतन करती है। हिकमत को कभी जरूरत नहीं होती कि वो अपनी हिकमत को साबित करती फिरे। कभी नोट किया है आपने कि अहमक आदमी सारा दिन इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरह खुद को साबित कर दे कि वो अहमक नहीं है, और इसी कोशिश में ही उस बीमारी की सारी एनर्जी है। जिस दिन वो शख्स अपनी हिमाकत को कबूल कर लेगा, उसी दिन से वो हिकमत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसको यूं समझो कि कोई शख्स बीमार है और वो ये साबित करता फिर रहा है कि वो बीमार नहीं है, तो क्या इससे उसकी बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, जिस लम्हे वो बीमारी का होना कबूल कर लेगा, सेहत की तरफ उसका सफर शुरू हो जाएगा। अब वो इलाज की फिक्र करेगा। तुम डॉक्टर के सामने बैठे हो और उसे कहते रहो कि तुम बीमार हो ही नहीं, तो वो तुम्हारा इलाज क्या करेगा? आज के इंसान को गौर से देखो, ये बीमारी को कबूल ही नहीं कर रहा। यही इंसान था, छोटा बच्चा था तो समझता था कि बड़ा हो जाऊंगा तो सुख मिलेगा। गरीब था तो सोचा था कि दौलत मिल गई तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बेरोजगार था तो सारे गमों का इलाज एक अदद नौकरी थी। कुंवारा था तो सारी खुशियां शादी से जुड़ी थी। बे औलाद था तो सारा सुख औलाद पर मुनहसर था। अब वही इंसान है, छोटे से बड़ा हो गया है। क्या उसके दुख दर्द मिट गए हैं? गरीब अमीर हो गया, क्या मसले खत्म हो गए? बेरोजगार बरसरे रोजगार हो गया, क्या जिंदगी सुख का बहता दरिया हो गई? कुंवारा शादीशुदा हो गया, क्या सारे सुख मिल गए? बे औलाद औलाद वाला हो गया, क्या परेशानियां मिट गईं? हिमाकत इसी का नाम है। सवाल नहीं बदले, सवाल बिल्कुल सेम है। बच्चा खिलौना मांगता था और इसी में इत्मीनान देखता था। अब वही बच्चा फैक्ट्री मांग रहा है, मगर ये सवाल नहीं उठा पा रहा कि ये मांगने का सिलसिला ही तो कहीं हिमाकत नहीं है। ये चीज़ों से भरने की कोशिश ही तो कहीं कोशिश बेकार नहीं है। हिकमत के रास्ते का पहला संगे मील है अंडरस्टैंडिंग, ये समझना कि जिंदगी कैसे काम करती है। ये फहम वो बुनियाद है जिस पर जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। ये सेंस पैदा हो जाए तो यही सारी चीजें ही खुशी देना शुरू कर देंगी। किसी भी बीमारी के इलाज का पहला स्टेप है बीमारी को बतौर बीमारी जान लेना। अना बहुत ही फरेबी नोयत का मेंटल स्ट्रक्चर है। अना के लिए खुद को अहमक मानना, खुद को बीमार मानना उसकी मौत है। इसलिए अहमक से अहमक आदमी को भी मिल लो जो अना की जद में है, वो अपने हर एक्शन की रीजंस देगा। तुम जरा किसी को अहमक कहकर तो देखो, फिर उसका रिएक्शन देखना। गालियां उसका जवाब होगा, झगड़ा करेगा, लड़ेगा। ये जो लड़ रहा है, जो अहमक कहे जाने पर गालियां दे रहा है, इसको समझने की जरा कोशिश तो करें। अगर किसी ने आपको अहमक कहा और आप अहमक नहीं हैं, तो जवाब देना बनता ही नहीं है। किसी सूफी को, किसी फकीर को जाकर कहो कि तुम अहमक हो, तुम बेअमल हो, तुम फरारी हो, वो कभी इस बात पर नहीं चिढ़ेगा। आप अहमक नहीं हो और कोई अहमक कह दे तो आप में गुस्से का पैदा होना बनता ही नहीं है। दूसरी सूरत, अगर आप अहमक हैं
और कोई आकर आपको अहमक कह दे तो आप लड़ने लगेंगे। इस लड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस हिमाकत को डिफेंड कर रहे हैं। आप अहमक हैं या नहीं हैं, दोनों ही सूरतों में झगड़ा नहीं बनता। लेकिन आप जरा किसी को कहें अहमक और फिर देखें उसका रिएक्शन। तुम इंसान को जरा गौर से देखो, खास तौर पर आज के इंसान को। ये सारा दिन अपनी हिमाकतों के डिफेंस में ख्वार है। ये हिमाकत है कि चीजें उसे भर देंगी, दौलत उसके अंदर के खला को भर देगी, ताकत उसकी बेबसी के एहसास को मिटा देगी, शोहरत उसके कुछ ना होने को कुछ होने में बदल देगी। और इस हिमाकत को बचाने के लिए इंसान सारा दिन कोशिश में लगा है। गौर करना कभी, जो जितना ज्यादा अहमक होगा उतना ही अपनी हिमाकतों के हक में वो ज्यादा से ज्यादा दलीलें लाएगा। अहमक ये कह सकता है कि खुदा नहीं है और इसकी दलीलें भी ला सकता है। गौर से नाम निहाद मुल्हदों को सुनना शुरू करो। वो खुदा के ना होने की दलीलें लाने में कैसे बेचैन फिर रहे होते हैं। खुदा नहीं है ये हिमाकत भरा फिक्रा है, और इस बेवकूफ़ी को फिर साबित करने की दलीलें लाना अपनी हिमाकत के डिफेंस के सिवा और क्या है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दो कि मुझे पता नहीं है कि खुदा है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ा फिक्रा है। ये फिक्रा आपको मालूम की मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते के पहले संगे मील पर खड़ा कर देगा। मुझे पता नहीं है, ये जहालत नहीं है, ये जानने की शुरुआत है। और जिसको इतना पता लग गया कि वो नहीं जानता, तो जान लो कि उसने बहुत कुछ जान लिया, बल्कि सब कुछ जान लिया। मैं नहीं जानता, इसमें जानने के सारे इम्कानात पोशीदा हैं। सुकरात कहा करता था कि इतना जानने की कोशिशों के बाद जो एक चीज मैं जान पाया हूं वो ये है कि मैं नहीं जानता। खुदा नहीं है ये फिक्रा तुम किस बुनियाद पर कहोगे? ये तुम कह कैसे सकते हो? लेकिन कितने ही लोग हैं जो चीखे जा रहे हैं कि खुदा नहीं है। असल में जो शख्स ये कह रहा है कि खुदा नहीं है, ये कोई बहादुर आदमी नहीं है। ये दुनिया की रिवायतों को चैलेंज करता नजर आता है, मगर असल में ऐसा नहीं है। इसका बड़ा नफ्सियाती पस मंजर है। ये शख्स असल में बुज़दिल है, थुड़दिला है, कम हिम्मत है। क्योंकि अगर ये कहे कि खुदा है तो फिर इसको खोज में निकलना पड़ेगा। अगर ये मान ले कि खुदा है तो फिर बैठा नहीं जा सकता, फिर ढूंढना ही पड़ेगा। कैसे हो सकता है कि तुम कायनात के सबसे बड़े सच के होने को जानते भी हो और पाने ना जाओ? एक खजाने का होना भी तुम मानो और उसे ढूंढने ना जाओ, ये कैसे हो सकता है? अगर खुदा है तो खुद को मिटना पड़ेगा, क्योंकि खुद मिटता है तो ही खुदा हो सकता है। खुदा दूसरे को तो बर्दाश्त ही नहीं करता, लेकिन जब कोई मुल्हिद कह देता है कि खुदा नहीं है तो वो बेसिकली एक चालाकी कर रहा है। और चालाकी ये है कि अब उसे ढूंढने ही नहीं जाना, अब तलाश ही खत्म। इस बात को समझो कि खुदा को पाना और खुद को खोना ये दोनों एक ही सफर हैं। फ्रीडरिक नीत्शे ने कहीं अपने एक खत में लिखा था कि या तो खुदा हो सकता है या मैं हो सकता हूँ। मुल्हिद असल में आसान राह चुनता है कि खुदा के होने से ही इनकार कर दिया जाए। ये उसकी बहादुरी नहीं है, ये उसकी बुज़दिली है। वो उसको बचाने की फिक्र कर रहा है कि जिसने मिटना ही मिटना है, और उसमें इतना दम है ही नहीं कि उसको पाने निकले कि जिसका होना ही बस हकीकी होना है। मुल्हिद की नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है कि जब वो खुदा का इनकार करता है, उसके होने को मानने से इनकार करता है, तो उसे ये ढारस मिलती है कि वो तो है ही। क्योंकि कोई है जो खुदा के होने से ही इनकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो इनकार कर रहा है वो तो है ही। ये अपने होने को बचाने की अहमकाना सी एक कोशिश है और कुछ नहीं है। और मुल्हिद पूरी तारीख में हमेशा ये हिमाकत करते आए हैं। जो समझदार होता है वो रिवायती मजहबियों की तरह
उस खुदा के होने का ऐलान भी नहीं करता कि खुदा है। न जिसको कभी खुदा की खुशबू मिली, न उसकी ज़िंदगी के तजर्बे में खुदा की कोई झलक है, मगर वो घर मुआशरे से सधाया गया है। वो ट्रेंड है, वो बस मान ही लेता है, मगर इस मानने में कोई जान नहीं होती। ये बस अंधा अकीदा है, ये हिमाकत का एक सिरा है। ये वो शख्स है कि जिसमें संजीदा सवाल उठाने की सिरे से कोई सलाहियत ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी चीख चीख कर खुदा के ना होने का इनकार करती रहती है, मगर वो ज़बान से इकरार करता रहता है। दूसरी हिमाकत करता है मुल्हिद। वो कहता है कि खुदा है ही नहीं, जो है ही नहीं उसे ढूंढने क्या जाना। तीसरा और समझदारी का रास्ता है मैं नहीं जानता। जो इस रास्ते पर चलता है वो अगर हिम्मतवर है तो खुदा को पा जाता है, और वो अगर कम हिम्मत है तो या इनकार कर देता है या बस अंधाधुंध मान ही लेता है, मतलब वापस उन्हीं दो ग्रुपों में शामिल हो जाता है। फ्रीडरिक नीत्शे ने ही एक जगह लिखा था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। अगर खुदा है तो मैं मिटा, और चाहे नीत्शे का उसलूब जैसा भी तुंद हो, मगर हकीकत यही है कि तुम जब तक मिटो ना खुदा हो नहीं सकता। सूफी जिस राह को चुनता है वो यही है। सूफी खुद मिटता है और खुदा को पा लेता है। इसीलिए सारे सूफी एक ही बात कहते हैं कि ला मौजूद इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई और है ही नहीं। वो भी नहीं है कि जो कह रहा है ला मौजूद इल्लल्लाह। खुद है तो खुदा नहीं हो सकता। खुद मिटते ही बस खुदा बाकी रह जाता है। इसलिए इस बात को समझो कि फ़कीर का रास्ता खुद को पाने का नहीं होता, उसका रास्ता खुद को मिटाने का रास्ता होता है। वही रास्ता जो इस कायनात का अज़लियो अबदी रास्ता है। देखते नहीं हो कि जो भी है वो सब मिटने की ही राह पर चल रहा है। कांट कहता था कि चीज जैसी हो वैसी कभी भी नहीं जानी जा सकती। हम उसे वैसा जानते हैं जैसा हम उसे जान सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम जो जान सकते हैं उसका इन्हिसार जानी गई चीज़ों पर नहीं होता, बल्कि हमारे जान सकने की सलाहियत पर होता है। कई चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं मगर छिपकली शायद उन्हें ना देख पाती हो। कुछ चीज़ों को चूहे देख पाते हों और हम ना देख सकते हों। कुछ आवाज़ें जो आप नहीं सुन सकते वो कुत्ते हाथी सुन सकते हों, और कुछ आवाज़ें जो आप सुन पाते हैं वो मछली कछुए ना सुन सकते हों। तो आप जिन भी चीज़ों के बारे में जानते हैं वो उन चीज़ों की हकीकत होती ही नहीं है, वो आपकी सलाहियतों का रिजल्ट होता है। मतलब ये है कि जिसको भी आप ऑब्जेक्टिव हकीकत मान रहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंतहाई सब्जेक्टिव है। याद रखो, जो भी तुम देखते हो उसमें देखने वाला शामिल हो जाता है, और जो ही देखने वाला भी देखने के अमल में शामिल होता है, चीज़ वैसी नहीं रहती जैसी वो है। इस बात को समझे कि जैसे ही आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, तो आपके दिमाग में उसका पैटर्न पहले से मौजूद होता है जो दिमाग फौरन सामने ला देता है। आपने एक तस्वीर दिमाग में सेव कर रखी है जिस पर खजूर का दरख्त लिखा हुआ है। अब आप हजारों भी खजूर के दरख्त देखें तो वो कद, शक्ल, साख्त में हजार भी रंग के हों, आप कुछ भी नहीं देख रहे होते, बल्कि उस तस्वीर को देख रहे होते हैं जिस पर खजूर का दरख्त लिखा हुआ है और जो आपके दिमाग में मौजूद है। और दिमाग चीज़ों को जो लेबल देता है उसकी नेचर डुअल है, उसमें सनवियत होती है, उसमें दूसरा हमेशा मौजूद होता है। इस बात को ध्यान में रखो कि दिमाग किसी भी चीज़ को जानता है उसके अपोजिट की वजह से।
वो दिन को रात की वजह से जान सकता है, दुख को सुख की वजह से, स्याह को सफेद की वजह से। इंटेलेक्ट की बेसिक नेचर यही है कि वो चीज़ों को दो हिस्सों में तोड़ देती है, तकसीम कर देती है, वो अपोजिट को अलग कर देती है और फिर किसी चीज़ की एक शनाख्त आप में पैदा होती है जिसे आप अपना जानना कहते हैं। अना जो दिमाग की तख्लीक है वो इसी डुअलिज्म की दुनिया में काम करती है। मैं कहता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करता, सिर्फ मुआफ़ करता हूँ, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि बगैर गुस्से के माफ़ी हो कैसे सकती है? अगर आप गुस्सा ही नहीं हुए तो माफ़ करना कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। माफ़ करने के लिए पहले गुस्सा करना नागुज़ीर है। माफ़ी गुस्से का ही साया है। इंसान का मसला ये है कि वो अपोजिट पैदा करता है और चीज़ को समझता है। वो ये जान ही नहीं पाता कि वो जिस अपोजिट को निकाल रहा है असल में वो उसे समझने में, उसे जानने में शामिल है। जब आप किसी को कहते हो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है तो आप असल में ये कहना चाह रहे हो कि वो माफ़ करने वाला है, लेकिन आप नागुज़ीर तौर पर उसे ये भी कह रहे हो कि वो बहुत गुस्सीला है, क्योंकि अगर वो गुस्सा ही नहीं करता तो फिर माफ़ करना कैसा? इंटेलेक्ट ऐसे ही चीज़ों को तोड़कर समझती है। वो दो मुतज़ादात में मौजूद वननेस को नहीं देख सकती। दिमाग मौत को समझता है जिंदगी की अपोजिट, दुख को जानता है सुख के मुतसादम, जबकि जो नेचर की ज़बान है उसमें तकसीम है ही नहीं। इस कायनात की सारी स्कीम में दिमाग ने चीज़ों को बांट कर समझने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप माइंड से मावरा होकर देख सकें तो ये तकसीम सिरे से मौजूद ही नहीं है। हकीकत सिर्फ एक है। अकल सरहदें उठाती है, लेकिन अकल की सारी सरहदें बस तसव्वुर हैं, आइडियाज़ हैं। हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपका दिमाग इस दुनिया को बड़े आज़मों में बांट सकता है, मुल्कों, शहरों, गलियों, महलों, दरियाओं, पहाड़ों, सहराओं में तकसीम कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये तकसीम कितनी कोई सॉलिड है। आप 1 करोड़ मील दूर से ज़मीन को देखकर कैसे कहेंगे कि ये बड़े आज़म हैं, ये मुल्क हैं, ये शहर हैं, ये पहाड़ हैं? चांद को देखकर कभी आप बड़े आज़मों का जिक्र नहीं करते, सितारों को सितारा कह देते हैं, कभी सहराओं पहाड़ों में बांटने का ख्याल आपको नहीं आता। ये आपकी इंटेलेक्चुअल मजबूरी है चीज़ों को बांटना, मगर आप में कोई एक मकाम है जो माइंड से मावरा उस वननेस से, उस वहदत से जुड़ा है। आप जो सांस लेते हैं, कभी उस सांस के धागे को गौर से देखा है? अभी अफ्रीका के जंगलों में मौजूद किसी दरख्त की खारिज करदा ऑक्सीजन गैस है जो आपने इनहेल की है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने एक्सहेल की है वो अमेरिका में मौजूद किसी दरख्त ने इनहेल की होगी। ये सांस का धागा पूरी कायनात को जोड़कर खड़ा है। वो जो खला है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस मौजूद है, जो हवास की जद से बाहर है, वो एक कुल है। इसको यूं देखें कि आप इस कमरे में बैठे हैं, आपने कमरे की दीवारें खड़ी करके बाहरी खला से इस खला को तोड़ दिया है जो खला कमरे की दीवारों के अंदर मौजूद है। लेकिन आप सोचिए कि क्या आपने वाकई खला को तकसीम कर लिया है? आप नहीं कर सकते। आज ये कमरा गिर जाए तो खला वहीं का वहीं वैसा ही नाकाबिले तकसीम मौजूद है। दीवार उस खला को काट नहीं सकती, क्योंकि दीवार को भी उसी खला में ही होना पड़ता है। दीवार के जर्रे जर्रे में वो खला मौजूद है। आप एक घड़ा कहीं से ले आए, घर पहुंचे वो घड़ा टूट गया, तो क्या कहेंगे कि ये जिस जगह घड़ा टूटा है ये खला वहीं का है जहां से आप घड़ा उठा कर लाए थे? नहीं, वो खला वहीं का है, वो नाकाबिले तकसीम है, वो टूटने वाला है ही नहीं। तो इस बात को समझो कि जो बाहर का खला और कमरे के अंदर का खला है वो दो नहीं है, वो एक ही है। अब इसी कमरे की मिसाल को अपने जिस्म पर लागू करें। आपके जिस्म की ये बाउंड्री अगर ढह जाए,
जैसा कि ढह जाती है मौत के वक्त, तो वो बाउंड्री जिसने इस खला को घेर रखा था, जिसे आप कहते थे, वो खत्म होने से क्या वो खला मिट जाता है जो इस जिस्म की दीवार से तकसीम नजर आता था? नहीं, वो वैसा ही रहता है। तुम इस खला को तकसीम नहीं कर सकते। ये वननेस, ये वहदत, ये एकता, ये कुल ही असल है। दिमाग की तकसीम की दुनिया बस काम चलाऊ है, एक आर्जी इंतज़ाम है जो एक मादी ढांचे के तौर पर आप 60-70 साल के लिए चलाते रहते हैं। मौत के वक्त बस इतना होता है कि घड़ा टूट जाता है, लेकिन घड़े में आखिर क्या टूटता है, ये भी कभी सोचा? कुछ भी तो उसमें टूटता नहीं है। वो खला जिसको बंद करने के लिए घड़ा बनाया गया था, वो खला भी वैसा ही मौजूद है, और वो मट्टी जिससे घड़े की दीवारें बनी थी, वो भी वैसी की वैसी ही मौजूद है। मौत का खौफ और उसका दुख बस एक गलत फहमी का नतीजा है कि कमरे के अंदर का खला और बाहर का खला अलग अलग है। जिस्म में मौजूद खला मैं हूँ और जिस्म से बाहर मौजूद खला दूसरा है। यही दूसरा हमारा सारा दुख है, और ये दूसरा अमलन है ही नहीं, ये बस हमारे दिमाग की इख्तरा है, क्योंकि दिमाग दूसरा क्रिएट किए बिना एक को समझ नहीं सकता, और जो दूसरा क्रिएट किए बिना एक को देख लेता है उसी को कहते हैं सूफी। वो जो परसेप्शन की मिस्टेक को समझ जाता है वो मिस्टिक है। इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक मिस्टिक, एक मिस्टेक। जिंदगी को सतही तौर पर जानने के लिए दिमाग की दुनिया है, और जिंदगी की गहराइयों को समझने के लिए दिमाग से मावरा होना जरूरी होता है। इसको यूं समझे कि इंटेलेक्ट झील की लहरों से डील करती है, वो लहरें कि जो अपनी असल में हैं ही नहीं। लहरें बखुद मौजूद ही नहीं होती, लहरें पानी नहीं होती, बस पानी की एक खास फॉर्मेशन की वजह से नजर आती हैं। दिमाग इन्हीं लहरों को समझता है और उनसे मानी लेता है, लेकिन लहरों से नीचे मौजूद जिंदगी की झील को समझना हो तो ये इंटेलेक्ट कुछ काम नहीं देती, क्योंकि इंटेलेक्ट दो की तकसीम में काम करती है, और झील की सतह के नीचे कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एक जिंदगी है, एक ही किस्म का पानी है, ऐसा एक जिसका कोई दूसरा नहीं है। सूफी जिस रूहानी बेदारी की बात करता है वो कोई एक्ट नहीं है, वो कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो सिरे से कोई प्रोसेस ही नहीं है। रूहानी बेदारी का बस एक ही मतलब है कि जो करो जागते हुए करो, शऊर की हालत में करो, अपने हर एक्शन, अपने हर थॉट के गवाह रहो, हाजिर रहो और देखते रहो कि इस वक्त जिस्म ये कर रहा है। मौजूद रहो और देखते रहो कि इस वक्त दिमाग ये सोच रहा है। ये जो हाजिर है, ये जो मौजूद है, जो जिस्म और माइंड की हर सरगर्मी को देख रहा है, ये जो अलर्ट प्रेजेंस है, ये जो होशियार बाश कॉन्शियसनेस है, यही बेदार रूह है, यही इनलाइटनमेंट है। इस बात को समझो कि अना या अनाई दिमाग अपनी ज़ात में इन इटसेल्फ कुछ नहीं होता, ये कुछ चीज़ों के साथ चिमटता है और कुछ होता है। आप किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, किसी चीज़ को खुद समझना शुरू करते हैं, तो फिर ही अना वजूद में आती है, वरना तो आप किसी भी चीज़ को मैं कह ही नहीं सकते। आप अपनी ज़बान, अपने लफ्ज़ों पर तवज्जो देना। आप जिसे आप कहते हैं वो क्या है? आप कहते हैं मेरा नाम है सफदर। आप क्या कर रहे हैं? एक लफ्ज़, एक लेबल के साथ खुद को एक समझ रहे हैं, अदरवाइज इस नाम का आपके होने से कोई भी लेना देना नहीं है। अना को कुछ भी चल जाता है खुद को तख्लीक करने के लिए। लोग कम्युनिज्म के लिए,
नेशनलिज्म के लिए जाने देते आए हैं। क्या था वो? एक आइडिया, एक आदर्श से जहन नत्थी हो गया था। क्या फर्क था इस बात में कि बहादुर शाह जफर हुक्मरान होता या कोई बरतानवी लॉर्ड या सर, लेकिन अना खुद को तसलसल देने के लिए कुछ न कुछ से चिमटती है, क्योंकि ये इन इटसेल्फ कुछ होती नहीं है। इसको यूं समझें कि ये एक भूत है, और भूत को मैनिफेस्टेशन के लिए ह्यूमन बॉडी तो दरकार होती ही है। यही भूत इस वक्त इंसान को कब्जे में लिए हुए है। ये अनाओं की जंग का ज़माना है, इसलिए तो इतनी सहूलतें हैं, इतनी इजादें हैं, ज़िंदगी को सुख और आसान कर देने वाली इतनी दरियाफ्तें हो रही हैं, मगर इंसान की ज़िंदगी है कि मुश्किल और मुश्किल ही होती जा रही है। अना की नेचर है, वो चीज़ों के साथ, आइडियाज़ के साथ, सिचुएशंस के साथ एक हो जाती है और इसी को आपकी शनाख्त बना देती है। आप जिस आइडेंटिफिकेशन से शिद्दत से चिमटते हैं, उतना ही अना स्ट्रांग होती जाती है। आपने कभी नोट किया कि फौजियों के बच्चे ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं, मौलवियों के बच्चे ज़्यादा मजहबी शिद्दत पसंद होते हैं, फ़लसफियों के बच्चे ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव होते हैं? क्यों? क्योंकि अनाई दिमाग के पास जो भी कुछ दस्तयाब होता है वो उसी से चिमट जाता है और उसी को मैं में ढाल देता है। एक मिसाल को समझने की कोशिश करें। कोई इंसान है, बहुत ही गरीब है, अचानक उसकी लॉटरी निकल आती है करोड़ों रुपए की। अब उसकी मैं की नेचर में जो तब्दीलियां आएंगी वो आप तसव्वुर कर सकते हैं। कल तक जिस खोखे से सिगरेट लेना मामूल की बात थी, आज वहां रुकना तौहीन महसूस होगी। कल तक जिन दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलना ओके था, आज वो बेमसरफ और खिलाफ शान एक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि अना कैसे बाहरी चीज़ों से जुड़कर उनको आप में ऐड कर रही है। यही कुछ क्लासरूम्स में हो रहा है। एक बच्चा अच्छे मार्क्स ले रहा है, एक बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं। वो जहानत के लेबल से चिमट रहा है और वो गबी का लेबल खुद पर लगा रहा है। यही अच्छे मार्क्स लेने वाला बच्चा कल को अच्छी नौकरी नहीं पा सकेगा तो फिर माशरे में टैलेंट की कदर ना होने के आइडिया को चिमटेगा, और कोई नौकरी पा लेगा तो खुद में मौजूद टैलेंट्स पर गरूर के आइडिया से चिमटेगा। इंसानी जहन किसी भी नाकामी, किसी भी कामयाबी को मैं में ढालने में बड़ा कामयाब है। उसकी वजह यह है कि इर्द गिर्द का सारा माहौल इसी को सपोर्ट करता है। एक तमाशा हो रहा है और उस तमाशे में इंसान अपनी सहूलत और मिजाज के मुताबिक चेहरे उठा रहे हैं और उन्हें खुद पर चढ़ा रहे हैं। इस सारे अमल में कोई खराबी नहीं है अगर ये सारा अमल होश की हालत में हो रहा हो। कोई आप में जानने वाला मौजूद रहे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा रोल है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं लाइफ एक्सपीरियंस हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ। मैं वो हूँ जो जान रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मेरा रोल है। डॉक्टर अगर आपका रोल है तो आप उसे बखूबी निभाएंगे, लेकिन इसे खुद पर ऐसे हावी नहीं करेंगे कि ये आपका वे ऑफ एग्जिस्टेंस ही हो जाए। अना का बुनियादी तरीन काम बस यही है कि वो उस देखने वाले को, उस विटनेस को, उस शाहिद को, उस गवाह को, उस कॉन्शियस प्रेजेंस को ज़ेरे नकाब रखना चाहती है, क्योंकि अगर ये विटनेस मौजूद है तो फिर अना हो ही नहीं सकती। अना को आपकी हस्ती पर कंट्रोल मिल ही नहीं सकता। फिर आप गरीब होकर एक तरह से और अमीर होकर दूसरी तरह से बिहेव नहीं कर सकेंगे। इसलिए अना इतना शोर क्रिएट करती है, इतने थॉट्स पैदा करती है, इतनी मंजिलें, मकासद और अहदाफ आपके इर्द गिर्द बखेर देती है कि आपकी मुकम्मल तवज्जो अपनी तरफ ले जाती है, और आप वही हैं जिस तरफ आपका फोकस है। ये फोकस अगर बाहरी चीज़ों से अंदर की तरफ हो जाए तो फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाती हैं। याद रखना, बाहर की तरफ हर फोकस गलत है
चाहे वो जैसा भी आला और शानदार क्यों ना नजर आ रहा हो, क्योंकि बाहर की तरफ फोकस का मतलब ही एक है कि अना आपको कंट्रोल कर रही है। कुछ भी इस वक्त आप फील कर रहे हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है, बहुत लालच है, 1 मिनट के लिए रुकें और देखें कि क्यों आप गुस्से में हैं, नफरत में हैं, लालच में हैं। जैसे ही आप इन हालतों की वजूहात की तरफ देखना शुरू करेंगे, आप अना से बीइंग की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि जो हालत है, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनका ताल्लुक बाहर से है, लेकिन इन फीलिंग्स, इस हालत की वजूहात आपके अंदर हैं। वजूहात की तरफ जो ही फोकस जाएगा तो आप इस हालत से एक नहीं होंगे। इसको समझने की कोशिश करें कि एक ही ट्रैफिक जैम में 10 लोग फंसे हों, 9 को गुस्सा आ रहा हो, 1 पुरसुकून बैठा हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुस्से की वजह ट्रैफिक का जैम होना नहीं है, बल्कि गुस्से की वजह वो शख्स है जो ट्रैफिक जैम से गुस्सा निकाल रहा है। एक जगह पर 10 लोग बैठे हैं और शोर मचा हुआ है। 9 लोग इस शोर से डिस्टर्ब हो रहे हैं और एक इंसान इस शोर से डिस्टर्ब नहीं हो रहा। वजह क्या है? 9 लोग बाहरी शोर से जुड़ गए हैं और एक शख्स बातनी सुकून से जुड़ा है। झील में जितनी भी लहरें हों, झील की तह हमेशा साकित होती है, हमेशा पुरसुकून होती है। वही झील अपने बातिन में भी बेकरार हो सकती है कि जो झील की सतह पर मौजूद लहरों से खुद को एक समझ ले। फोकस अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो बाहरी वाकयात मुतासिर करना छोड़ देते हैं। बाहर इसके बाद फिर सिचुएशंस रह जाती हैं और सिचुएशंस सिर्फ एक ही मुतालबा करती हैं कि उन्हें डील किया जाए। बाहरी फोकस से रॉन्ग फोकस, क्योंकि आपने अपना सारा इख्तियार बाहरी अवामिल को दे दिया है। अब बाहरी अवामिल तय करेंगे कि आप खुश रहेंगे या नाखुश, आप पुरसुकून रहेंगे या बेचैन। नौकरी तय करेगी कि आप खुशहाल हैं या बदहाल। दूसरों का रवैया तय करेगा कि आप सुकून से आज रात सोएंगे कि करवटें बदल बदल कर रात गुजारेंगे। और इस बात को भी समझें कि बाहरी दुनिया, बाहरी अवामिल आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं हो सकते। आप बहुत ज़्यादा भी इन्फ्लुएंशियल हों तो फिर भी बाहर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जितने भी ताकतवर हों, आप एक घर को भी मुकम्मल तौर पर 100% अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी एक शख्स को, अपनी बीवी को, अपने मियाँ को, अपने बेटे को, अपनी बेटी तक को भी 100% वैसा नहीं बना सकते जैसा आप चाहते हैं। बाहरी फोकस का मतलब ये है कि आपने मुसलसल बेचैन रहना है। इसके मुकाबले में राइट फोकस है अपने अंदर उस मकाम को समझना जहां चीज़ों को मुआनी दिए जा रहे हैं। आप कमरे में बैठे हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं। बाहरी फोकस का रिजल्ट होगा चिड़चिड़ापन, गुस्सा। और अंदरूनी फोकस का मतलब है बाहर हो रही दुनिया को ये मानकर कबूल करते हुए पुरसुकून रहना कि बाहरी दुनिया मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं हो सकती। बाहरी दुनिया पर सिर्फ एक फैक्टर यानी आप ही असरअंदाज नहीं हो रहे होते, बल्कि बहुत से हयातियाती, समाजी, मुआशी, तबई अवामिल कार फरमा होते हैं। अगर आप बाहरी दुनिया को बदल कर खुशी, सुकून और इत्मीनान पाना चाहते हैं तो फिर जान लीजिए कि ये आपकी सलाहियतों से बाहर की एक चीज़ है जिसको आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप खुश नहीं रह सकते, मुतमईन नहीं हो सकते। राइट फोकस के ज़रिए आप ये चीज़ें पा सकते हैं और राइट फोकस है आपका बातिन। सूफी, मुर्शिद या गुरु जो मुरीदों की तरबियत करता है वो बस एक नुकाती एजेंडा होती है, फोकस योरसेल्फ नॉट सिचुएशन। आप
صورت حال کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اسے بدل سکتے ہیں جو صورت حال کو معانی دے رہا ہے۔